Students, hope you are all fine and healthy. So we will today study about the second executive or the second organ of the government, that is the executive. Lastly, we studied about the legislature. Now we are studying about the executives. So the laws that are framed by the legislature are actually put into action by the executives. So these executives have a lot of work to do, from starting of the planning of the execution to the actually implementation of the execution. So that's why executives are divided into two parts. Number one, political executives, and number two, administrative executives. So these political executives are the ones which are elected by us. They are elected by us for the term of 5 years. They plan and make the programs for the well-being of the people. Now these plans and programs are then executed by the administrative executives, who are permanently appointed on the basis of their qualification. So I will give you an example of political executive. The chief minister and the cabinet of ministers are actually the political executives, and the IAS and IPS officers that are working at central or state level or the district level, those are known as administrative executive. So political executive, as we know, starting from the president, the prime minister, the cabinet of minister, at the state level the governor, the chief minister, and the cabinet of ministers. So these are all political executive. What is the difference between political executive and administrative executive? So administrative executives are the persons based on their qualification. उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करनी होती है और उसके बाद उन्हें चूज़ किया जाता है फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पर्पज़. और जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, तो वो लोग होते हैं जिन्हें हम लोग, जो सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, वो लोग उन्हें चुनते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द peaceful ruling of any state. Okay, so this is the main difference, as we call. Also, political executives are for the term period of 5 years, but the administrative executive are there till retirement. Now the major difference is political executive though are temporary but have more power as compared to administrative executive. Okay, now we will one by one learn about the political executive. Number one, president. As we all know, he is the constitutional head of our country. Also, the whole federal government runs under his power. He is the head of the nation as well as the first citizen of the Republic इंडिया. अब अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो मेरे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो नंबर वन, मैं इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए. मैं सेकेंडली, मेरी एज जो है वो 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. ही शुड नॉट बी अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस. किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए. द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज़ इनडायरेक्टली कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस. और द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और वो इलेक्शन वापस भी लड़ सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म. फंक्शन और पावर क्या है? तो प्रेसिडेंट जो है वो मेजॉरिटी जिस भी पार्टी को मिला है उसके लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेशन के बाद जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है. उनकी जो ओथ सेरेमनी है उसे वो एडमिनिस्टर करते हैं. साथ ही साथ पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी वो एडमिनिस्टर करते हैं. जब तक कैबिनेट को मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा में, तब तक प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं कैबिनेट. प्रेसिडेंट हेड है सारे डिफेंस जो सेक्टर्स है कंट्री के उसके. ही हैज़ द पावर टू डिक्लेयर अ वॉर, ही हैज़ द पावर टू सीज अ वॉर, ही हैज़ द पावर टू कंक्लूड वेरियस ट्रीटीज़ विद अदर कंट्रीज़. वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, गवर्नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं. तो ऐसे देखा जाए तो बहुत वास्ट पावर है प्रेसिडेंट के पास. दोनों हाउसेस के सेशंस को बुलाना, लोकसभा को डिसॉल्व करना, अगर सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड है नहीं है कि हो सकता है कि कभी भी कहीं से भी अटैक हो जाए, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना, इमरजेंसी किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर करना, ये सारे पावर्स जो है, प्रेसिडेंट्स रूल लागू करना, ये सारे पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है. सेकेंड जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो है वाइस प्रेसिडेंट. अब वाइस प्रेसिडेंट के अंडर ज़्यादा कुछ नहीं आता है. पहला और फॉरमोस्ट ये है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, राइट.
दिस इज़ अनडाउट। और जब भी प्रेसिडेंट रिटायर होते हैं या फिर रिज़ाइन करते हैं सॉरी, तो वो जो रेजिग्नेशन है वो अपना वाइस प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अगेन द इलेक्शन इज कैरिड आउट इन बाय द मेंबर्स ऑफ द बोथ दी हाउसेस। प्राइम मिनिस्टर, नाउ प्राइम मिनिस्टर एज वी ऑल हैव स्टडीड और गॉन थ्रू कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलता है उसका जो लीडर है उसे प्राइम मिनिस्टर की तरह इलेक्ट किया जाता है। ही इज़ द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे डिसीजन ऑल्दो प्रेसिडेंट के नाम रहता है बट सारे डिसीजन कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री का सारा कामकाज जो है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ही हैंडल करते हैं। उनके पास ये पावर रहता है। वो ज़्यादातर प्लानिंग कमीशन के हेड हैं। 3 levels of ministers are there under him, like the cabinet minister, the state minister, the deputy minister. Okay, if the Lok Sabha rejects the policy of the government, तो इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर मिनिस्टर, बट साथ ही साथ जितने भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन सबकी जिम्मेदारी ये बन जाती है। स्टेट लेवल पे अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो गवर्नर के पावर सेम है जैसे कि प्रेसिडेंट के थे, और सेम सब कुछ सेम है। हाँ, बस ये है कि उसे हर चीज़ के लिए प्रेसिडेंट से सलाह लेनी पड़ेगी, उनसे मशवरा लेना पड़ेगा, तभी उसके बाद वो डिसीजन ले सकते हैं। बट मेजॉरिटी powers and functions are same as the President of India. Same with the Chief Minister. Again, he also has the same powers as the Prime Minister and the Cabinet of Ministers. Under him, there are 4 levels of ministries, that is Cabinet, State level, Deputy and Parliamentary Secretary. Otherwise, whole lot of work is similar to the Prime Minister. Okay. एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ये तो हो गए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो अभी हमने देखे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स की अगर बात करें तो कितना भी हम अच्छे प्लान्स बनाएं, कितना भी अच्छा प्रोग्राम बनाया जाए, बट अगर उससे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, अगर उसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोग सही नहीं हैं, तो उन पॉलिसीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए दैट इज़ द फोरमोस्ट थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज policies in a proper manner. What you have decided that you will work for the welfare of the people, so you will have to work for the welfare of the